اپنے بڑے سپوت کی حرکتیں دیکھ رہے ہو، الیکشن سے بچنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا تک گوارا نہیں کرا، اب سے بھیجا ہوا ہے بچی کو اسے بلانے۔ ہمارا کھانا اختتام پہ آ چکا ہے، لیکن مجال ہے جو اس بگڑی ہوئی اولاد نے کمرے سے باہر قدم نکالا ہو۔ عادل شاہ کا رخ اب ہارون شاہ کی طرف تھا۔ ابھی ہارون شاہ کچھ بولتے جب زریش شاہ نے ان کی بات میں اپنی ٹانگ اڑائی۔ داجی، مجھے لگتا ہے آپ کو الیکشن کے بجائے احان لالا کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، آخر کو ان کو بچے پیدا کرنے کی عمر ہے اور آپ کی ان کی اولاد دیکھنے کی۔ زریش شاہ نے مصروف انداز میں بولتے ہوئے منہ میں چھوٹا سا نوالا ڈالا تھا۔ زریش شاہ کی بات پہ جہاں سب کے چہرے سرخ ہوئے تھے، وہیں پہ کاظم شاہ کو پانی پیتے ہوئے اچھو لگا۔ زریش شاہ کی بات سنتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہوئے احان شاہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بچے پیدا کرنے کی؟ خبیث انسان سوچ سمجھ کے بولا کر۔ کاظم شاہ اپنے ساتھ بیٹھے زریش شاہ کے کندھے پہ مکہ جھڑتا سرگوشی میں گویا ہوا تھا، جس پہ زریش شاہ نے دانتوں تلے اپنی زبان دیتے ہوئے سب کو دیکھا تھا، اور ایسا کرتے وہ مرحا شاہ کو بے حد خوبصورت لگا تھا۔ ان کی شادی کروانے کی، باپ بننے کی عمر ہے، تو اسی لیے انہیں الیکشن سے دور ہی رکھیں۔ زریش شاہ اپنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے اپنے کچھ دیر پہلے بولے گئے جملے میں رد و بدل کر گیا۔ مرحا شاہ کی خود پہ ٹکی نظروں کو وہ معمول کی طرح اگنور کر رہا تھا۔ داجی کی اپنی شادی ان کے چھوٹے بھائی سے لیٹ ہوئی تھی نا، تو اسی لیے انہوں نے اس بات کو دل پہ لے کے رسم بناتے ہوئے پہلے چاچو جان کی شادی بابا جان سے پہلے کر کے ان کے ساتھ ناانصافی کی، اور پوتوں کی دفعہ انہوں نے پھر سے ناانصافی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے بڑے پوتے کو چھوڑ کے بچپن میں ہی میرے بجائے تمہارا نکاح پڑھوا دیا۔ فکر نہ کرو، ہمارے خاندان میں رواج ہے بڑوں کی شادی لیٹ کرنے کا۔ اپنے بھورے بالوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے سنوارتا احان شاہ ڈائننگ روم میں داخل ہوتا سنجیدگی سے اپنی بھاری آواز میں زریش شاہ سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی اتنی لمبی گفتگو کا مقصد داجی کو الیکشن کے ٹاپک سے باز رکھنا تھا۔ ایزل شاہ کی گود میں کب سے بیٹھی اس کی سفید کٹی نے احان شاہ کی بات پہ میاؤں میاؤں کی آواز نکالتے ہوئے جیسے اس کی تائید کی تھی۔ احان شاہ کے سنجیدہ انداز میں بولے کہ اتنا مزاحیہ جملوں پہ تضاد۔ ایزل شاہ کی کٹی کے احان شاہ کی طرف دیکھ کے یوں میاؤں میاؤں کرنے پہ کاظم شاہ، عظیم شاہ، زریش شاہ، دریاب شاہ اور میرال شاہ کا مشترکہ قہقہ گونجا تھا، جبکہ باقی سب خواتین نے بمشکل اپنا قہقہ دبایا۔ داجی اور ہارون شاہ نے گھور کے احان شاہ کو دیکھا تھا۔ ہارون شاہ نے دل میں اپنے دونوں سپوتوں کو سلواتوں سے نوازا تھا جو انہیں ہر جگہ شرمندہ کرواتے تھے۔ اگلے ہفتے کی پریس کانفرنس میں ہارون میڈیا کو تمہاری الیکشن میں کھڑے ہونے کے متعلق آگاہ کر دے گا، لہٰذا تم خود کو ہر طرح سے الیکشن کے لیے تیار رکھو۔ وہ عادل شاہ ہی کیا جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں؟ وہ اپنے دونوں پوتوں کی باتوں کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتے احان شاہ کو گھورتے ہوئے رعب سے بولے تھے۔ ان کاموں کے لیے کاظم سے رابطہ کریں داجی، میں ان دنوں کافی مصروف ہوں۔ احان شاہ نے ہمیشہ کی طرح کاظم شاہ کو پھنساتے ہوئے بیزاری سے اپنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ معذرت، میں آج کل اور اگلے آنے والے سالوں تک آفس کے سلسلے میں کافی مصروف ہوں۔ کاظم شاہ نے دانت کچکچاتے ہوئے اسے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ داجی نے تعصب سے سر ہلاتے اپنے ایک سے بڑھ کے ایک گستاخ اور ڈھیٹ ابن ڈھیٹ پوتے کو دیکھا تھا۔ وہ کاظم شاہ سے الیکشن کی بات پہلے ہی کر چکے تھے، لیکن وہ انہیں اپنے کام کے بارے میں مصروفیت کا بتاتا ہوا صاف انکار کر چکا تھا۔ داجی، میری سمجھ سے باہر ہے، جب چاچو جان اور بابا جان سب ٹھیک سے لے کے چل رہے ہیں تو میری ضرورت کیوں کر پیش آ رہی ہے آپ کو؟ احان شاہ جھنجھلائے تاثرات سے بولا۔ 29 سال کے ہو چکے ہو تم شاہ، آخر کبھی نہ کبھی تو یہ سب سنبھالنا ہے، تو آج کیوں نہیں، جب تمہارے پاس تمہارے مضبوط سہارے موجود ہیں؟ کیا آپ میرے مرنے کے بعد یہ سب سنبھالو گے؟ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کم از کم ان کے چاروں نہیں تو 2 پوتے ہی سیاست میں طاق ہو جائیں۔ وہ جدی پشتی سیاستدان تھے، اسی لیے اپنے پوتوں کی سیاست سے اتنی دوری ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اچھا فرض کریں میں بابا جان اور چاچو جان کی جگہ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ احسن ملک جیسے تجربہ کار سیاستدان کو چھوڑ کے مجھے ووٹ کیوں کریں گے؟ داجی، آپ کیوں نہیں سوچتے اگر میں نیا سیاست میں قدم رکھوں گا تو ہماری ریپوٹیشن گر جائے گی؟ احان شاہ انہیں اپنے لفظوں کے جال میں پھنسانے کی ہر طرح سے کوشش کر رہا تھا۔ احسن ملک کی جگہ اس کا باپ قبر سے نکل کے الیکشن پہ کھڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ پھر بھی ہمارے پوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ عادل شاہ روبدار انداز میں بولے تھے، ان کے لہجے میں پوتوں کے لیے فخر ہی فخر تھا۔ ٹھیک ہے یار، جیسے آپ کی مرضی، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں۔
अहान शाह के नाराज चेहरे को देखते हुए निरूठेपन से उनका हाथ थामते हुए गोया हुआ था। उसके अंदाज पे सबके चेहरे पे जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट दौड़ी थी, सवाई सुरेश शाह के, जिसका चेहरा एहसन मलिक का नाम सुनते ही गुस्से से तन चुका था। हमें पहले ही अपने पोते पे यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारी बात कभी नहीं टालेगा। आदिल शाह खुशी से मुस्कुराते हुए बोले थे, जिसपे सबने होंकों की तरह उन्हें अपना बयान बदलते हुए देखा था। अभी कुछ देर पहले वो कैसे अहान शाह को लेकर गुस्से से भरे पड़े थे। ताजी, इतनी जल्दी तो गोरियां अपना बॉयफ्रेंड भी नहीं बदलती जितनी जल्दी आपने लाला के बारे में अपना मौक़िफ़ बदला है। अज़म शाह बेबाकी से अपने शहद रंग बालों में हाथ फेरता, संजीदगी से बोलता, सबको कहका लगाने पे मजबूर कर चुका था। ताजी ने घूरते हुए अपने सबसे छोटे और लाडले पोते को देखा था, जो सबका बाप था। तुम्हारी भी लगामें कस लेते हैं हम छोटे शाह, आदिल शाह उससे टपटते हुए गोया हुए थे, जिसपे अज़म शाह ने अपनी शहद रंग आंखों को टिपटिपाते हुए उनकी तरफ देखा। हमें आप सबसे मज़ीद एक ज़रूरी बात करनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन हमने और तुम्हारी शाह बीबी ने एजल बेटी और अज़म शाह का, जबकि शाह यानी आहान और मिराल बेटी की मंगनी का निकाह करने का सोचा है। अब बाकी तुम दोनों बता दो, तुम दोनों निकाह चाहते हो या मंगनी? क्योंकि शादी कुछ वक्त तक धूमधाम से होगी, जब सब अपनी मसरूफियात से फारिग हो जाएंगे। आदिल शाह ने अपने दोनों पोतों पे बम फोड़ते हुए उन्हें अपने फैसले से आगाह किया था। दाजी की बात सुनते हुए अपनी कुटी में मसरूफ एजल शाह का वजूद साकित हुआ था। मिराल शाह की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। आहान शाह और अज़म शाह कितनी देर कुछ बोल नहीं सके। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों? किसी को कोई एतराज़ है हमारे फैसले पे? डाइनिंग टेबल पे इतनी खामोशी देखते हुए आदिल शाह ने अपनी रोबदार आवाज़ में सबको मुखातिब किया। मिराल शाह का दिल चाहा ऊंची आवाज़ में ऐलान करते, जी जान से कबूल है आपका फैसला ताजी। लेकिन मिराल शाह की सरगोशी में समझाने पे वो जो लब वाह करने वाली थी, मुंह बना के खामोश हो गई। डाइनिंग रूम में बर्तन उठाने की गर्ज से दाखिल होती गुलाली का वजूद जैसे जल्जलों की जिद में था। गुलाली की क्रिस्टल ग्रे आंखें लबालब पानियों से भरती फैल चुकी थीं। गुलाली को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। अभी कुछ देर पहले ही तो उसके महरम ने उसकी सांसों पे काबिज होते हुए उस पर अपना हक जिताया था, और अगले ही पल ऐलान किया जाता है कि वो किसी और का होने वाला है, तो उसकी 7.5 साला मनकूहा इतने बड़े सदमे से मर ना जाए। गुलाली अपनी हिचकियां रोकने की गर्ज से अपने होंठों में चादर दबाती हुई वहां से भागी थी। काजिम, तुम बताओ, क्या हमारा फैसला गलत है? सबको हनूस खामोश देखते हुए आदिल शाह का रुख अब काजिम शाह की तरफ था, क्योंकि हारून शाह और दरियाब शाह से तो वो पहले ही इस बाबत इस्तफसार कर चुके थे, जिस पे उन्होंने उनकी तायद करते हुए अपना रजामंदी दी थी। अब वो अपने पोतों की रजामंदी चाहते थे। दाजी, आपका फैसला कैसे गलत हो सकता है? अच्छी बात नहीं है, ओज़ी हमारे छोटे शाह की हो जाएगी। हमारी ओज़ी को किसी गैर जगह पे जाना ही नहीं पड़ेगा, और आहान और मिराल का भी कपल अच्छा रहेगा। काजिम शाह ने नरमी से मुस्कुराते हुए पहले अज़म और एजल शाह के मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ बयान किया, और फिर आहान शाह को आंख दबा के सुलगाते हुए उसके और मिराल के कपल पे एक अच्छा सा कमेंट दिया, जिस पे मिराल शाह के चेहरे पे तो ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट दौड़ी थी, लेकिन आहान शाह उसे घूरियों से नवाजना नहीं भूला था। एजल शाह का वजूद तो ऐसे साकित हुआ था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं, लहू में बदन नहीं। काजिम शाह के मौक़िफ़ पे एजल शाह ने पथराई आंखों से उसकी तरफ देखा। एजल शाह की नीली आंखों में नमी उमटी थी। दाजी, जब तक काजिम लाला की शादी नहीं होगी, मैं उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हुए कभी भी पहले शादी नहीं करूँगा। अज़म शाह ने आदिल शाह के इस फैसले पे खुद को संभालते हुए संजीदगी से बहाना गढ़ा था, जिस पे काजिम शाह ने मुस्कुरा के आइब्रो उचकाते उसकी तरफ देखा। उसका इंतज़ाम भी हम कर लेंगे छोटे शाह, पहले तुम बताओ, तुम्हें हमारे फैसले से कोई एतराज़ तो नहीं है? आदिल शाह ने अपना रुख अज़म शाह की तरफ मोड़ते हुए रोबदार आवाज़ में पूछा था। दाजी, मैंने एजल के मुतल्लिक कभी ऐसा नहीं सोचा, वो मेरी छोटी बहनों की तरह, मैं नहीं चाहता हमारा ये बहन भाइयों वाला रिश्ता ख़राब। इससे पहले कि अज़म शाह मज़ीद तवज्जो पेश करता, जब आदिल शाह ने उसकी बात काटी, शादी से पहले सब बहनें ही होती हैं, अगर अभी नहीं सोचा तो बाद में सोच लेना, अगर इसके अलावा कोई वजह है तो बताओ। आदिल शाह कंधे उचका के संजीदगी से गोया हुए थे, जिस पर अज़म शाह ने अपने लब सख्ती से भींचे थे। आंखों के सामने छम से एक पर्दे में छुपा हुआ सरापा लहराया था। अज़म शाह का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो अपनी कैफियत समझने से कासिर था, उसकी समझ से बाहर था। वो दाजी को क्या जवाब दे? दाजी, मेरा अभी शादी का कोई प्लान नहीं है। काजिम मुझसे 3 दिन बड़ा है, इसीलिए असूलन इसकी शादी मुझसे पहले बनती है। आहान शाह ने बेतासुर लहजे में यहाँ भी काजिम शाह को फंसाया था, जिसने उसे चौंक के देखा।
आज पहली बार उसने काजिम शाह को बड़ा बनाया था, वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए, वरना वो हर वक्त काजिम शाह पे भी रोक झाड़ने से गुरेज नहीं करता था। वेट, ये आप दोनों मेरे कासिम लाला को बार बार सिंगल होने के नत नए पहेलियों से अंदाज में ताने क्यों दे रही हैं? वैसे ही उन्हें मुंह पे बोल देना जो दिल में है। सुरेश शाह अपने से कुछ फासले पे बैठे अहान शाह और अर्जिम शाह को देखता बज़ाहिर कासिम शाह की हमायत में बोला था, लेकिन कासिम को दिल जलाने वाली मुस्कुराहट पास करना भी वो नहीं भूला था। उसे तो बस बहाना चाहिए होता था कासिम शाह के कवारे होने पे चोट करने के लिए। सुरेश शाह के मौक़िफ़ पे काज़िम शाह का ज़ब्त से सुर्ख होता चेहरा देखते हुए सबने मुस्कुराहट दबाई। ये तो तुम दोनों सरासर चवलें ही मार रहे हो। मेरा नहीं ख्याल तुम दोनों को हमारे फैसले से कोई ख़ास मसला है, इसीलिए मंगनी अपने मुकर्ररा वक्त पे होगी। आदिल शाह टिशू से अपने लब थपथपा के अहान और अर्जिम को लताड़ते कुर्सी से खड़े हो चुके थे। दाजी, मैं सीरियस हूँ, मुझे भी शादी नहीं करनी। जब अपनी मर्जी की किसी लड़की से करनी होगी तो बता दूंगा आपको। अहान शाह संजीदगी से बोलता हुआ वहाँ रुका नहीं था, बल्कि वो लंबे लंबे डग भरता डाइनिंग रूम से निकल चुका था। सबने अहान शाह के ढके छुपे अल्फाजों में दाजी की बात से इनकार सुनते हुए अपने लब काटते हुए उसकी पुश्त को देखा। देख रहे हो ना अपनी नाफरमान औलाद को, कभी जो तुम्हारी टेढ़ी औलाद सीधे तरीके से मेरी बात मान ले। दाजी अपने सामने बैठे निचले लब को दांतों में दबाए हारून शाह को देख के गुस्से से बोलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ चुके थे। हारून शाह ने अपने बड़े सपूत की इस हरकत पे अपने लब भींचे थे। अहान शाह के मुंह से खुद के लिए रिजेक्शन सुनते हुए मिराल शाह का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। उसने जिंदी अंदाज में अपनी भूरी आंखों में बेतहाशा सुर्खी लिए शाह बीबी की तरफ देखा, जिन्होंने उसे आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा दिया था। मिराल शाह एकदम से अपने सामने रखी प्लेट पटकती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। अर्जिम शाह ने अपने बाप को इल्तिजाइया नज़रों से देख के नफ़ी में सर हिलाया था, जो दाजी की बातों से बिल्कुल मुत्तफिक नजर आते उसे घूरियों से नवाजते खामोश रहने का इशारा कर रहे थे। पहले ही अहान उनकी बात से इनकार करके उन्हें गुस्सा दिला चुका था। वो नहीं चाहते थे मजीद अर्जिम शाह के इनकार पे दाजी का बीपी शूट कर जाए। एजल शाह अपनी कुट्टी को उठाते हुए काजिम शाह को जख्मी नज़रों से देखती अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। काजिम शाह हैरान हुआ था उसकी नीली आंखों में लबालब पानी देख के। चील सी नज़रें रखने वाला सुरेश शाह अपनी कुर्सी से टेक लगा के बैठता डाइनिंग टेबल पे बैठे एक एक शख्स के तासुरात अच्छी तरह से असबर कर चुका था। गुलाली दाजे की बात सुनते हुए वहाँ रुकी नहीं थी। वो अपने कदम घसीटती हुई अपनी एनेक्सी की तरफ जा चुकी थी। गुलाली को लगा कोई उसके वजूद से रूह निकाल रहा हो। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन खुद पे सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुलाली का भी कुछ ऐसा ही हाल था। चाहे उसके शाह साई ने उसे अपनी शरीके हयात के तौर पे कबूल नहीं किया था, लेकिन गुलाली ने तो उसे पूरे दिल से अपने जिस्म जान का मालिक बनाया था। वो छोटी सी नाजुक जान कैसे बर्दाश्त करेगी खुद के साथ इन हवेली वालों की इस कदर सफाकी और ज्यादती? क्या सारी जिंदगी के लिए हाजा जैसे मजबूत सहारे का साथ पाना सिर्फ उसकी तमन्ना ही रह जाएगी? गुलाली आंसू बहाती हुई अजियत के इंतहा पे सोचती अपने कमरे में आके चारपाई पे औंधे मुंह गिरती फूट फूट के रो रही थी। सच शुक्र सरताज अम्मा हनूज हवेली में थी, वरना गुलाली की अजियतनाक सिसकियां सुनते हुए उनके हाथ पैर फूल जाते। सुरेश शाह अपने कमरे में दाखिल होने वाला था जब मिरहाशा न जाने कहाँ से आती हुई उसके बिल्कुल सामने आके खड़ी हुई। वो बिल्कुल किसी तेज हवा के झोंके की तरह आई थी। सुरेश शाह ने उस अचानक पेश आती सूरत हाल पे बमुश्किल अपने तेज कदमों को ब्रेक लगाई। सुरेश शाह ने बेसाख्ता उसकी बल खाती कमर में हाथ डालते उसे गिरने से बचाया था, वरना उससे टकराने के बाद मिरहा शाह का सर बुरी तरह से उसके दरवाजे के साथ टकरा जाता और चोट लगने पे सुरेश शाह की बोल्ड लेकिन हद से ज़्यादा नाजुक शहजादा पूरी हवेली पे सर उठा लेती। ये क्या तरीका है? कुछ देर संभलने के बाद सुरेश शाह उसकी कमर से हाथ निकालता उसे देख के गुस्से से बोला था, पहली बात तो ये कि ये रेश शाह की शहजादी का तरीका है माय हैंडसम हबी, और दूसरी बात मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मिरहा शाह उसकी ब्लैक जैकेट अपनी मुट्ठियों में भेज के उसे खुद के करीब करती हुई आंख मार के एक अदा से बोली थी। उसकी सदा पे हमेशा की तरह सुरेश शाह का दिल पहलू में धड़का था। पहली बात तो ये कि मेरा नाम सुरेश शाह है। दूसरी बात, तुम मेरी शहजादी के ओहदे से उसी दिन उतर गई थी जिस दिन तुम मुझे धुतकार के बैरूने मुल्क गई थी। और तीसरी और आखिरी बात, मुझे तुम्हारी किसी किस्म की कोई बात नहीं सुननी, मेरा रास्ता छोड़ो। सुरेश शाह अपने धड़कते दिल को टपटता हुआ उसके हाथ अपनी जैकेट से हटाता बेतासुर लहजे में बोला, अगर बीवी मनाने में पहल कर ले और शौहर जान पूछ के एटीट्यूड दिखाए तो मुंह की खानी भी पड़ सकती है रेशा।
इसी लिए मुझे एटीट्यूड उतना ही दिखाओ जितना मेरा बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, नहीं तो वहाँ पे रख के इग्नोर मारूंगी। हर किसी से पूछते फिरोगे मैं नज़र भी आ रहा हूँ या नहीं। मिरहा शाह उसके एटीट्यूड पे गुस्से से उसकी बॉडी बिल्डर सीने पे मुक्का जड़ती। दबी दबी आवाज़ में गर्राई थी उसके अल्फाज पे। सुरेश शाह ने उसे दांत देने के अंदाज में आईब्रो उचका के देखा था। वो ना चाहते हुए भी उसकी ज़रूरी बात सुनने के लिए सीने पे हाथ बांध के खड़ा हो चुका था, जिस पे मिरहा शाह फतामंदी से मुस्कुराई थी। लंदन में आने से पहले ही मैं इस्लामाबाद में जॉब के लिए 2 से 3 हॉस्पिटल में अप्लाई कर चुकी थी। लंदन में मेरी जॉब के एक्सपीरियंस के बुनियाद पे मुझे इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में जॉब मिल चुकी है। मैं चाहती हूँ मैं पाकिस्तान में अपनी जॉब कंटिन्यू करूँ। तो तुम क्या बोलते हो, मतलब क्या मैं ये जॉब कर लूँ या फिर कहीं और अप्लाई करूँ। मिरहा शाह का अंदाज बिल्कुल वैसा था जैसे वो बचपन में कोई काम करने से पहले उससे मशवरा लेती थी, लेकिन वो ये मशवरा लेती हुई अनजाने में सुरेश शाह को जलते तवे पे बिठा चुकी थी। मुझे नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे को मशवरा देने और मशवरा लेने की पोजीशन में हैं। डॉक्टर बनने से पहले मुझसे पूछा था जो अब जॉब के वक्त अपना कैरियर बना के तुम्हें सुरेश शाह याद आ गया है। सुरेश शाह ने अपना सपाट लहजे में मिरहा शाह को भिगो भिगो के तंज मारे थे। वो कुछ पल खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन याद आता है तेरा मुझसे मोहब्बत करना। वो उसके तंज पे भराई आवाज़ में उसे शेर के अंदाज में जवाब देती वहाँ से जाने ही वाली थी जब सुरेश शाह ने उसे कलाई से पकड़ते हुए दरवाजे के साथ लगाया। सुलग रहा हूँ कई दिन से अपने ही अंदर में, अब जो लब खोलूँगा तो बहुत तमाशा होगा। सुरेश शाह उसके बेहद करीब होता, उसके लबों पे फूंक मारते हुए बेतासुर लहजे में गोया हुआ था। वो कितना सब करके भी मजलूम बन रही थी। उसकी 2 दिन की इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और सुरेश शाह का क्या, जिसने उसकी 6 साल की धुतकार सही थी। देखना कैसे पिघलते जाओगे जब मेरी आगोश में तुम आओगे। मिरहा शाह उसकी भूरी बियर्ड पे हाथ फेरती इतराते हुए गोया हुई थी। वो फिर से अपनी पहली जोन में आ चुकी थी। उसे उसके साथ शायरी में मुकाबला करने में अजीब लुत्फ महसूस हो रहा था। उसके शेर पे सुरेश शाह का दिल शिद्दत से धड़का था। वो उसे अपनी आगोश में आने की दावत दे रही थी, ये सोचे बगैर कि वो उसके लबों की शिद्दत भरी गुस्ताखियाँ अपनी आगोश में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सुरेश शाह ने हलचल मचाते दिल की पुकार इग्नोर करता उसका हाथ अपनी भूरी बियर्ड से हटा चुका था, जिस पे मिरहा शाह ने अपना निचला लब काटते हुए उसकी तरफ देखा। रास्ता बदल लिया मैंने, अब मेरी जगह यही है, तेरी जगह नहीं हूँ मैं, तेरी सज़ा यही है। सुरेश शाह ने अंगूठे से उसका निचला लब उसके दांतों की कैद से आज़ाद करवाता अपने अल्फाजों से ही उसे उसकी सज़ा सुना के उल्टे पैर वापस हुआ था। मिरहा शाह उसके अल्फाज पे कितनी देर कुछ बोल नहीं सकी। मिरहा शाह ने साकित होते हुए उसकी चोटी पुष्ट को देखा था। तुम्हें वापस से अपनी जगह पे आने को मजबूर ना कर दिया तो मुझे अपनी शहजादी ना कहना तुम। क्रैक रेशा। मिरहा शाह गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच के बुलंद आवाज़ से गर्राई थी। गुस्से के बायस मिरहा शाह के सफ़ेद चेहरे पर सुर्खियां खुली थीं। सुनहरी आंखों में गुस्से की सुर्खी छाती हुई उन आंखों को मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। आखिरी सीढ़ियों से उतरता हुआ सुरेश शाह उसकी गराती आवाज़ सुनते हुए सर झटक के आगे बढ़ चुका था। तुमने मुझे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया हान शाह। मिराल शाह अपने कमरे में आती पूरे कमरे का हशर बिगाड़ती गुस्से से चीख रही थी। वो होता कौन है मिराल शाह के हुस्न को इग्नोर करने वाला। आखिर क्या कमी है मिराल शाह में। मैंने इतने साल तुम्हारे साथ का इंतज़ार किया है आहान शाह, मैं तुम्हें हासिल के बगैर नहीं रहूँगी। आहान शाह तुम मेरी ज़िद बन चुके हो, और जो लोग मेरी ज़िद बन जाते हैं जब तक मैं उन्हें हासिल करके अपनी ज़िद पूरी ना कर लूँ तो मुझे मिराल शाह कौन कहेगा। मिराल शाह अपने सुनहरी बालों को अपने हाथों की मुट्ठियों में जकड़ती ज़िद्दी अंदाज में चीखती हुई ज़मीन पे बैठी थी। आहान शाह के ढके छुपे अल्फाजों में रिजेक्शन उसका दिमाग मफलूज कर रही थी। मिराल शाह का बस नहीं था वो पूरी शाह हवेली को आग लगा दे। एजल शाह कमरे में दाखिल होते ही अपनी किट्टी को लेके बेड की तरफ बढ़ी थी। आंसू एजल शाह की नीली आंखों से फिसलते हुए टिप टिप आरसों पे गिर रहे थे। एजल शाह बेड पे गिरने के अंदाज में बैठती अपनी किट्टी को सीने में भेजते हुए पूरी तरह से फूट फूट के रो रही थी। एजल शाह की किट्टी उसे यूं रोते देख के परेशान होती, यूं मियाऊं की आवाज़ निकालते उसे चुप करवा रही थी, लेकिन एजल शाह ने रोना बंद नहीं किया। वो हिचकियां भरती हुई अपने बेड पे औंधे मुंह गिरती हनूज रो रही थी। मियाऊं मियाऊं। एजल शाह की किट्टी उसके गाल के साथ अपना गाल जोड़ती मासूमियत से आवाज़ें निकालती उसे चुप करवाने की तगदो में हलकान हो रही थी।
रात के 9 से 1 बज चुका था, लेकिन अभी भी एजल शाह का रोना जारी था। वो खामोशी से आंसू बहा रही थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। खामोशी से रोती हुई एजल शाह फ़ोन कॉल की आवाज़ इग्नोर किए हुए थी, लेकिन फ़ोन करने वाले ने फ़ोन करना बंद नहीं किया था। जब 5 से 7 मिनटों तक फ़ोन बजता रहा तो एजल शाह ने बेड से उठते हुए अपने कदम सोफ़े की तरफ बढ़ाए थे। सोफ़े से फ़ोन उठाते हुए एजल शाह ने नंबर देख के फ़ौरन से यस करते हुए अपने कान को लगाया। फ़ोन कॉल करने वाली जवेरिया थी और उस वक्त एजल शाह को जवेरिया की बेहद ज़रूरत थी। कहाँ दफ़ा होगी थी तू एजल? मुझे फिजिक्स के नोट सेंड कर दे, मेरे मिल नहीं रहे। फ़ोन से जवेरिया की झुंझलाई आवाज़ गूंजी थी, जिस पे एजल शाह उसे जवाब देने के बजाय फिर से फूट फूट के रोना शुरू हो चुकी थी। एजल मेरी जान, क्या हुआ? अब की बात जवेरिया की आवाज़ में परेशानी और फिक्रमंदी वाज़ेह थी। एजल शाह ने अपने मुंह पे हाथ रखते हुए अपनी सिसकियों का गला घोंटना चाहा था, लेकिन वो उसमें नाकाम ठहरी। एजल बोल ना, मेरी जान निकले जा रही है। जवेरिया मज़ीद परेशान दिख रही थी। जवेरिया, वो शाहजी जवेरिया, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। वो एजल शाह अपने मुंह से तोड़ तोड़ के जुमले अदा करती फिर से बच्चों की तरह रोना शुरू हो चुकी थी। क्यों, क्या हुआ तेरे राजकुमार को? क्या फिर से झगड़ा हो गया तुम दोनों का? जवेरिया ने तेजी से पूछा था। मेरा मेरा रिश्ता उनके छोटे भाई अर्जम लाला से तय हो गया है। जवेरिया, तू जानती है ना मैं शाहजी से कितनी मोहब्बत करती हूँ। इन सबको मेरी आंखों में शाहजी का अक्स नज़र क्यों नहीं आता? ये सब क्यों नहीं समझते मैं मर जाऊंगी। शाहजी के बगैर मुझे कफन पहनना तो मंजूर है, लेकिन शाहजी के अलावा किसी दूसरे के साथ निकाह कबूल नहीं। सिसकती हुई एजल शाह अज़ियत की इंतहा पे जनूनी अंदाज में चीखती ज़मीन पे उजड़ी हुई हालत में बैठी जवेरिया को अपने हाले दिल सुनाते हुए दरवाजे पे खड़े काजिम शाह को साकित कर चुकी थी। काजिम शाह रात के उस वक्त हमेशा की तरह उसके हाथ की चाय पीने आया था। काजिम शाह को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। उसकी ओजी गुड़िया कभी भी अपने मुंह से ऐसी बात निकालना तो दूर, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। काजिम शाह ने नफ़ी में सर हिलाते हुए नॉक किए बगैर एजल शाह का अध खुला दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे खोला था। कमरे में दाखिल होते ही काजिम शाह की नज़रें नीचे ज़मीन पे बैठी अपनी ओजी पे पड़ी थी, जो हनूज जवेरिया को काजिम शाह के मुतालिक अपने दिल की तमाम फीलिंग्स बयान कर रही थी। काजिम शाह ने अपने पैर की ठोकर से दरवाज़ा बंद करते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। जवेरिया, वो मुझे इतने प्यारे लगते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं उन पर से अपना आप वार दूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जवेरिया कि उन्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाए, वो भी मेरे इश्क में यूं ही पागल हो जाए जैसे मैं उनके इश्क में। अभी रोती हुई एजल शाह अपने आधे अधूरे जुमले को मुकम्मल कर दी जब काजिम शाह तेज़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ता, उसे बाजू से पकड़ के ज़मीन से उठाता, उसके हाथ से बेहद गुस्से से फ़ोन खींचता दीवार पे मारते हुए चकनाचूर कर चुका था। इस अचानक अवतार पे एजल शाह अपना सांस तक रोके अपने सामने लहू रंग गोल्डन आंखों वाले काजिम शाह को देखते हुए एजल शाह की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। तो क्या वो उसकी सारी बातें सुन चुका था? उसके तने हुए तासरात को देखते एजल शाह ने थूक निकलते हुए सोचा, ये किस तरह की बकवास कर रही थी तुम अभी? काजिम शाह उसके बाजू पे अपने हाथ की ग्रिप खतरनाक हद तक मजबूत करता हुआ बेहद गुस्से से गरजा था। आह! एजल शाह उसकी गरज पे अपने कानों पे हाथ रखती अपनी जगह से उछली। बोल दो ओजी, ये सारी बकवास जो अभी तुमने थोड़ी देर पहले की थी वो झूठ है? काजिम शाह उसके सहमने पे मध्यम आवाज़ में बोला था, लहजा इल्तिजाइया था। एजल शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पथराई आंखों से आंसू बहाती उसकी तरफ देख रही थी। बोलो ना ओजी शाह, ये सब तुम अपनी दोस्त को मजाक में बता रही थी? तुम ओजी ओजी तुम बोलो ना, तुमने कभी भी हमारे मुकद्दस रिश्ते का गलत मतलब नहीं निकाला। काजिम शाह उसके गालों पे अपने हाथ रखता मफलूज होते दिमाग से अपने लबों से लफ्ज़ तोड़ तोड़ के अदा कर रहा था। एजल शाह ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया, कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। एजल शाह, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने हमारे रिश्ते को कोई गलत मतलब देते हुए मज़ीद बकवास की। तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहनों की तरह हो एजल। मैंने बचपन से लेकर अब तक तुम्हें हमेशा किसी गुड़िया की तरह रखा है। तुम जवानी चढ़ते ही मुझे यूं धोखा नहीं दे सकती। काजिम शाह उसका सर नफ़ी में हिलाता देख के उसके बाजू को उसके कमर पे मरोड़ता अपनी पूरी कुव्वत से धाड़ा था। एजल शाह ने फूट फूट के रोते हुए उसे वैश्य रूप में आते देखा। भले ही उसे काजिम शाह के उस रूप से डर लगता था, लेकिन वो यहाँ तक आके अपनी मोहब्बत की कहानी अधूरी नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ शाहजी, प्लीज़ मुझसे निकाह कर लें। मैं हवेली से भाग जाऊँगी, लेकिन आपके अलावा किसी दूसरे से शादी
एज़र शाह मज़ीद कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी क्योंकि काज़िम शाह के मज़बूत मर्दाना हाथ का भारी थप्पड़ एज़र शाह की ज़ुबान तालू से चिपका गया था। चटाक की आवाज़ एज़र शाह के कमरे में गूंजी थी। उसके जोरदार थप्पड़ की वजह से एज़र शाह की आंखों के आगे सितारे नाचे थे। एज़र शाह ने अपने जलते हुए गाल पे हाथ रखते हुए बेयकीनी से काज़िम शाह को देखा था। काज़िम शाह ने बेहद गुस्से से उसके भूरे बाल अपने माथे की अपने हाथ की मुट्ठी में जकड़े। मैं सारी ज़िंदगी कंवारा रह लूँगा एज़र शाह, लेकिन तुम जैसी धोखेबाज और मक्कार लड़की के साथ कभी निकाह नहीं करूँगा। तुमने हमारे मुकद्दस रिश्ते की धज्जियाँ उड़ाई हैं एज़र शाह, जिसके लिए मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। काज़िम शाह गुस्से की शिद्दत से सुर्ख चेहरा लिए ठाड़ता हुआ उसे ज़मीन पे धिक्का देते बाहर की तरफ बढ़ चुका था। काज़िम शाह के अल्फाज में अज़ियत थी, गुस्सा था, मान टूटने का डर था, आंखों में नमी की लकीर थी। एज़र शाह, जो अभी तक उसके थप्पड़ से संभल नहीं पाई थी, उसके अल्फाज और उसके ज़ोरदार धिक्के से वो बुरी तरह से ज़मीन पे औंधे मुँह गिरी थी। काज़िम शाह के अल्फाज उसकी रूह तक छलनी कर चुके थे। वो उसे बुरी तरह से धुतकार के जा चुका था। सरताज, खैर तो है, तुम्हारी बेटी पिछले 3 दिनों से काम से छुट्टियां कर रही है। उसकी लापरवाही की वजह जान सकती हूँ। तस्बीह पढ़ती शाह बीबी गुस्से से सरताज से मुखातिब हुई थी, जो लाउंज की सफाई कर रही थी। शाह बीबी, वो पिछले 3 दिनों से बुखार में फनक रही है। उसके पूरे वजूद में दर्द है, चारपाई से भी उठ नहीं पा रही, इसीलिए वो 3 दिनों से काम पे नहीं आई। सरताज बीबी चेहरा झुका के परेशानी से बोली थी। अल्लाह माफ़ करे सरताज, कहीं कैंसर तो नहीं है तुम्हारी बेटी को? क्योंकि चारपाई से लग के तो वही लोग बैठते हैं जो बिस्तर मर्ग पे हो। शाह बीबी उसकी बात सुनते हुए सफाकी से गोया हुई थी। उन्हें उस लड़की का हुस्न शुरू से चुभता था और अब तो वो उस दिन से उसके और ज़्यादा खिलाफ हो चुकी थी जब से उन्होंने उसे अहान शाह की बाहों में देखा था। शाह बीबी, सरताज ने शाह बीबी के बेहिस अल्फाज सुनते हुए अपने दिल पे हाथ रखा। बकवास बंद करो और सुबह तुम्हारी बेटी हर हाल में हवेली में काम के लिए मौजूद हो। आजकल की नौकरानियां तो सर पे चढ़ चुकी हैं। शाह बीबी गुस्से से बोलती अपनी आंखें मूंद चुकी थीं। लाउंज में दाखिल होता अहान शाह कब से शाह बीबी की सफाक बातें सुनता हुआ सख्ती से अपने लब भींच गया। वो अपने भूरे बालों में हाथ फेरता हुआ शाह बीबी को सलाम किए बगैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने वाला था जब उसकी नज़र खुद से कुछ फासले पे खड़ी गुलाली पे पड़ी थी, जो शाह बीबी की बातें सुनने के बाद अपने आंसुओं पे बंद बांधने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो बमुश्किल अपने पैरों पे खड़ी थी। चेहरा हमेशा की तरह बुखार की शिद्दत से सुर्ख था। वो आजकल काफ़ी बीमार रहने लगी थी, या फिर शायद अहान शाह ने उसकी तरफ ध्यान ही कुछ दिन पहले दिया था। वो अहान शाह को खुद की तरफ देखता पाके मजीद उसकी तरफ एक भी निगाह गलत डाले बगैर किचन की तरफ बढ़ चुकी थी। गुलाली ज़्यादा देर फारिग नहीं रह पाई थी, इसीलिए अपने बुखार का ख्याल किए बगैर वो काम पे आ गई। अहान शाह उसके यूं ही खामोशी से जाने पे हैरान हुआ था। आज शायद पहली बार उसने उसे अपनी बोलती शिकवा कुना नज़रों से नहीं देखा था। अहान शाह ने अपने निचला लब काटते हुए उसकी थकी थकी चाल को देखा। उससे चलना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने वजूद को घसीटती हुई काम कर रही थी। मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मेरी बला से वो बुखार में हवेली में छोड़ के पूरे इस्लामाबाद में मुलाजमत करे। अहान शाह अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाता हुआ कंधे उचका के बेहिसी से सोचता सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर जा रहा था जब शाह बीबी की पुकार ने उसके कदम रोके। शाह, क्या सलाम दुआ कर आवाज ख़त्म कर चुके हो? शाह बीबी ने उसके सलाम ना करने पे संजीदगी से चोट की थी, जिस पे अहान शाह अपनी ज़ुबान दांतों में दबाता शाह बीबी की तरफ बढ़ा। वो आज तकरीबन 3 दिनों बाद यूं नहीं आया था। अज़म शाह जब भी डिस्टर्ब होता था वो अकेले वक्त गुजारना पसंद करता। उसने इन 3 दिनों में अपने दोस्तों की एक कॉल नहीं उठाई थी। वो खुद को 2 कश्तियों पे सवार महसूस कर रहा था। एक तरफ दाजी के कायम किए गए नए रिश्ते ने उसका दिमाग मफलूज किया हुआ था और दूसरी तरफ से जायशा बीबी उसके दिलो दिमाग पे काबिज आ चुकी थी। वो पिछले 3 दिनों से ठीक से नहीं सोया था। उठते बैठते सोते जागते उसके दिमाग के पर्दों में उसकी हेजल रंग आंखें लहराती थीं। उसकी आंखें इतनी प्यारी थीं तो न जाने उसका नकाब में छुपा चेहरा कितना हसीन होना था। अज़ीम शाह ने ठंडी आ भर के सोचते हुए अपनी क्लासरूम में कदम बढ़ाए। अभी रफ से हुलिये में मलबूस अज़ीम शाह क्लास में दाखिल हुआ ही था जब उसके दोस्तों के चेहरों पे जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट दौड़ी थी। वो सब जल्दी से अपनी अपनी कुर्सियों से उठते हुए अपने शहजादे की तरफ बढ़े थे, जिसमें उनके पूरे ग्रुप की जान बसती थी। ब्लैक ट्रैक सूट में मलबूस अज़ीम शाह संजीदगी से उनकी तरफ बढ़ा था। उस वक्त क्लास में कोई टीचर नहीं था। आज के पहले के 2 पीरियड फ्री थे। कहाँ था तू? तबीयत ठीक थी? तुझे मेरी याद नहीं आई शाह? शाह, तुझे कितने फ़ोन किए? तेरा फ़ोन बिजी क्यों आ रहा था? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया?
इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बनाई हुई है? कितना ढीठ है तू शाह, एक फ़ोन नहीं उठाया? वो सब एक दायरा बना के इकट्ठे ही उसके गले लगते हुए बारी बारी अपने शिकवे दोहरा रहे थे। उस वक्त ये मंजर बिल्कुल इस तरह से लग रहा था जैसे बच्चे अपनी बिछड़ी हुई माँ को मिल रहे हों। जायशा तो हमेशा की तरह उन नमूनों को देख के रह गई जो आते ही बेचारे अजीम शाह के साथ किसी महबूबा की तरह लिपटते हुए उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहे थे। अज़ीम शाह की हाइट उसके तमाम दोस्तों में सबसे लंबी थी। वो सब उसके गिर्द दायरा बना के खड़े उसे घेरे में हुए थे, लेकिन सुर्ख सफ़ेद रंगत वाला अज़ीम शाह अपने दराज कद की वजह से हनूज उन सब में नुमायाँ हो रहा था। जायशा ने आज पहली दफ़ा उसकी सफ़ेद चट्टानी सीने को हुडी से ढके हुए देखा था, वरना वो हर वक्त अपने गिरेबान के ऊपरी बटन खोले रखता। वो इतने रफ होलिये में भी जायशा समेत क्लास की तमाम लड़कियों के दिल बुरी तरह से धड़का चुका था। हटो भी अब कमीनों, हद होगी है तुम सालों की। अज़ीम शाह तपे हुए अंदाज में बोला था। उसकी अब की बार बस हुई थी। उसके दोस्त पागल बनते हुए उसके साथ किसी ग्लू की तरह चिपक के पीछे हटना भूल चुका था। बेवफा, तूने हमें याद नहीं किया? वो सब यक जुबानी से मजीद एक शिकवा कर रहे थे। पूरी क्लास दिलचस्पी से ये सारा मंजर देख रही थी। नहीं, टाइम नहीं था मेरे पास। अज़ीम शाह उस शैतानों के टोले को खुद से दूर छटकता अपनी काली हुडी को झाड़ते हुए मसरूफ अंदाज में बोला था। अज़ीम शाह के अंदाज पे जायशा ने अफसोस से उस बेरहम इंसान को देखा था जो अपने इतने नरम दिल और मासूम दोस्तों को मुंह पे बेइज्जत कर चुका था। जायशा को उसके दोस्त उस दिन से ही अच्छे लगना शुरू हो गए थे जब उन्होंने जानते बूझते भी उसके कॉन्सर्ट पे ना करने पे उसे क्लास से नहीं निकाला था। शाह वैसे अज़ीम के तमाम दोस्तों ने चेहरे पे बेहद मासूमियत सजाते हुए उसके चेहरे पे उंगलियां फेरते अपना जुमला अधूरा छोड़ा था। अज़ीम शाह ने उनके हाथों पे थप्पड़ मारते हुए उनके हाथ अपने चेहरे से हटाते आईब्रो चुकाया। वो उनके अधूरे जुमले के मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहा था। वैसे वैसे तो कितनी कुत्ती चीज़ है शाह, तुझे इज्जत रास क्यों नहीं आती? वो सब यक जुबानी से मासूमियत से लबरेज लहजे में बोलते हुए अज़ीम शाह के हाथों से पिटने से पहले ही बाहर की तरफ भाग चुके थे। यू ऑल ब्लडी गाइस। अज़ीम शाह कुछ लम्हे तो गायब दिमागी से उन्हें भागते हुए देखता रहा और फिर अगले ही लम्हे वो उनकी बकवास याद करता गुस्से से चीखता हुआ उनके पीछे भागा था। अज़ीम शाह के जाते ही पूरी क्लास हंस हंस के लोटपोट हुई थी, जिनमें जायशा भी शामिल थी। वो आज काफ़ी सालों बाद यूं हंसी थी, या अगर कहा जाए कि वो इस तरह से कभी नहीं हंसी थी तो गलत नहीं था। आयशा पिछले 3 दिनों से गैर इरादी तौर पर अज़ीम शाह का इंतज़ार कर रही थी। जायशा ने आज अपने दिल का पक्का इरादा बनाया था कि वो अपने फर्स्ट वीक के मिस हुए तमाम लेक्चर अज़ीम शाह से समझ के ही रहेगी, क्योंकि एक तो उस दिन के हुए वाक़े के बाद किसी लड़की ने उसे लेक्चर समझाना तो दूर, उससे ठीक से बात तक नहीं की थी, और दूसरा वो जायशा के मुताबिक आज इंसानों वाले ड्रेसिंग में था, बेशर्मों की तरह अपनी चट्टानी सीने की नुमाइश नहीं कर रहा था, और तीसरा वो उससे उस दिन के लिए माजरत करना चाहती थी और उसके कॉन्सर्ट को फ्री में सुनने की रकम अदा करना चाहती थी ताकि उसके दिल से बोझ उतर जाए। शाह, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम अपने दाजी के फैसले से यूं इनकार करोगे। शाह बीबी कुछ देर बाद अपने पास बैठे हुए अहान शाह से शिकवा करती हुई मुखातिब हुई थी। शाह बीबी, मैं उस दिन भी बता चुका था मुझे अभी शादी नहीं करनी। अहान शाह ने अपना उस दिन वाला जवाब दोहराते हुए अपने घने भूरे बालों में हाथ फेरा। तो तुम्हें शादी का कौन बोल रहा है शाह? सिर्फ मंगनी करके मिराल को अपने नाम कर लो, फिर जब तुम बोलोगे तब तुम्हारी शादी कर देंगे। शाह बीबी नरमी से उसके मजबूत हाथ पे अपना हाथ रखती मध्यम लहजे में बोल रही थी। शाह बीबी, मुझे अभी ना तो मंगनी के झंझट में पड़ना है और ना ही शादी के। मैं जब भी शादी करूँगा अपनी पसंद की लड़की से डायरेक्ट सादा निकाह करूँगा। मुझे ये फजूल की रसूमात पसंद नहीं है। अहान शाह नब्बे तले अंदाज में बोला था। शाह, तुम हमारे और अपने दाजी के फैसले की गुस्ताखी कर रहे हो। ऐसी क्या कमी है मेरी नवासी में जो तुम उसे अपनी शरीके हयात के तौर पे कबूल नहीं कर सकते? शाह बीबी सख्त लहजे में बोली थी। उन्हें बेहद नागवार गुजर रहा था बार बार मिराल शाह का धुतकारे जाना। अहान शाह जैसे अपनी ज़ुबान से इकरार कर रहा था वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। इसका मतलब तो यही था कि मिराल शाह उसकी पसंद पे पूरा नहीं उतरती। शाह बीबी, ऐसी बात नहीं है। मिराल एक अच्छी लड़की है, मैं उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अभी उन सब मामलात से दूर रहना चाहता हूँ। अहान शाह फिर से बात को गोल मोल करते हुए गोया हुआ। ठीक है, तुम इन मामलात से दूर रहना चाहते हो। जब हमारा किया गया कोई फैसला ही तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता तो फिर हमसे और अपने दाजी से भी दूर रहना शाह।
तुम हम दोनों को इन 3 दिनों से अपने इनकार की वजह से बहुत तकलीफ पहुंचा चुके हो। शाह बीबी अपनी आंखों में नमी लिए उसे ब्लैकमेल करती हुई अपना रुख मोड़ चुकी थी। अहान शाह ने बौखलाते हुए उनकी तरफ देखा था, जो नाराज होकर बैठ चुकी थी। आप जानती है ना, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता शाह बीबी। मुझसे मुंह मत मोड़े। अहान शाह ने उनकी गोद में अपना सर रखते हुए उनके हाथ को अपने लबों से लगाया था। वो जानता था वो अपने तमाम पोतों में सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती हैं। वो बचपन से ही उनकी बेहद करीब था, इसीलिए उनकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही थी अहान शाह से। शाह बीबी ने हनूस नरूठे बच्चों की तरह रुख मोड़े रखा। यार, ये आपने और दादी ने मुझे ब्लैकमेल करने की प्लानिंग कर रखी है क्या? अहान शाह तासुब से बोल रहा था। कुछ दिन पहले दादी ने नाराज होते हुए इलेक्शन के बाबत मना लिया और आज शाह बीबी नाराज होकर बैठ चुकी थी। कोई तुम पे दबाव नहीं डाल रहा, जाहिर है अब जवान हो चुके हो, अब कहाँ दादी की कोई बात अच्छी लगेगी तुम्हें। शाह बीबी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपकी कोई बात आपके शाह को कैसे बुरी लग सकती है? मुझे आपका किया गया हर फैसला मंजूर है। अहान शाह मोहब्बत से उनका हाथ चूमते हुए बोल रहा था। मेरा बच्चा, हमेशा खुश रहो मेरी नवासी के साथ, खूब जमेगी तुम दोनों की। दोनों का गुस्सा और जिद एक जैसी है, बस अब मंगनी के लिए तैयार रहो। शाह बीबी मजीद नाराज नहीं रह सकी। जब अहान शाह उनकी बात उनके 2 इमोशनल जुमलों के बाद मान चुका था, तो वो भला क्यों नाराज रहती। अहान शाह सब्र के घूंट पीता हुआ मिराल शाह के साथ मंगनी की हामी भर चुका था। उनके लिए चाय लाती गुलाली शाह बीबी के उन आखिरी जुमलों को सुनती हुई बामुश्किल अपने पाँव पे खड़ी थी। वो अपने निचले लब पे अपने दांतों से जुल्म ढाती उनकी तरफ बढ़ी थी। अजियत के एहसास से गुलाली की क्रिस्टल ग्रे आंखें सुर्खी और नमी से भरपूर थी। मिल गई तुम्हें फुर्सत काम पे आने की। गुलाली के हाथ से चाय का कप पकड़ती शाह बीबी उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली थी। अहान शाह उनकी गोद से उठता हुआ सीधा होकर सोफे पे बैठा गुलाली को अपने निचले लब पे जुल्म ढाते हुए देख रहा था। माफ़ कीजिएगा शाह बीबी, आइंदा से छुट्टी नहीं करूंगी। गुलाली ने मनमना के माफ़ी मांगते हुए अहान शाह की तरफ चाय बढ़ाई थी, लेकिन अपने हाथों की कपकपाहट की वजह से वो गर्म आग चाय थोड़ी सी मिकदार में अपने हाथ पे गिरा चुकी थी। गुलाली ने सिसकी भरते हुए अपने जले हुए अंगूठे और 2 उंगलियों को देखा, जो बेहद सुर्ख हो चुकी थी। अहान शाह की नज़रें उसकी सिसकी भरने पे उसकी आकुति होंठों से होती हुई उसके हाथ पे पड़ी थी। होगी इसकी ड्रामेबाजियां शुरू। शाह बीबी ने उसकी तरफ देखते हुए ना खुद से सर झटका था। शाह बीबी के अल्फाज पे गुलाली का चेहरा मुतगय्यर हुआ था। वो अहान शाह से नजरें मिलाए बगैर उसे जल्दी से चाय पकड़ाती हुई वहां से भाग चुकी थी। अहान शाह ने चाय का घूंट भरते हुए उसकी पुश्त को घूरा था। जायशा कब से ग्राउंड में बेंच पे बैठी कनखियों से अजीम शाह को देख रही थी। जिनके दोस्त मजाल है जो उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। वो यूनी के बड़े से ग्राउंड में मिकाइल की गोद में सर रख के लेटा संजीदगी से अपना फ़ोन इस्तेमाल करता, साथ साथ अपने दोस्तों की शरारतों के जवाब दे रहा था। अजीम शाह अगर कोई शरारत भी करता तो इतने संजीदा अंदाज में करता कि अगला बंदा उसे देख के रह जाता। अजीम शाह अपने फ़ोन में मगन अपनी इंस्टा पे आई की रिक्वेस्ट चेक कर रहा था, जब नोफिल के ऊंचे कहके पे उसने चौंक के उसकी तरफ देखते ही अपना आईब्रो झुकाया। मतलब सही है यार, अगर इतना ही शौक चढ़ा हुआ था उसे शॉर्ट्स पहन के तस्वीर खिंचवाने का, तो किसी और रंग का पहन के अपना शौक पूरा कर लेता। कि पिंक कलर का कच्छा पहन के फेसबुक पे तस्वीर लगाने की कौन सी आग लगी हुई थी। नोफिल अपने मोबाइल को देख के हंस हंस के लोटपोट होते हुए बोल रहा था। कौन है ये? अर्जिम के अलावा सबने तेजी से नोफिल से इस्तफसार किया, जबकि अर्जिम पूछने में वक्त जाया किए बगैर उसके हाथ से फ़ोन खींचते हुए उस नमूने का दीदार कर रहा था जिसने ऐसी हरकत की थी। नोफिल के फ़ोन में अपने क्लास फेलो रमीज़ को पिंक कच्छा पहनने के साथ डार्क गोल्डन बालों की विग लगाते देख के अर्जिम शाह ने अपना निचला लब दबाते हुए अपनी हंसी पे काबू पाया। अर्जिम के चेहरे पे दबी दबी मुस्कुराहट देखते हुए उसके दोस्तों ने बेताबी से उसके हाथ से फ़ोन लिया था, जबकि मिकाइल, जो अर्जिम के साथ ही रमीज़ की तस्वीर देख चुका था, वो नोफिल के हाथ पे हाथ मार के हंस हंस के पागल हो रहा था। खबरदार जो तुम लोगों ने किसी का मजाक उड़ाया। अजीम शाह ने डपट के फिर से अपने फ़ोन में मगन होने ही वाला था जब उसकी नज़रें सामने बेंच पे बैठी हुई जायशा की तरफ उठी थी, जो उसी की तरफ देख रही थी। उसके देखने की देर थी जब जायशा ने जल्दी से अपनी नज़रें रजिस्टर पे मरकूज की। अजीम शाह उसकी इस हरकत पे ज़ेरे लब मुस्कुराता वहाँ मिकाइल की गोद से उठा था। वो काफ़ी देर से उसकी नज़रों की तपिश खुद पे महसूस कर रहा था। अपने दोस्तों को रमीज़ की इंस्टा पोस्ट पे हनूस हंसते हुए मसरूफ़ पाते हुए अजीम शाह अपने शहद रंग बालों में हाथ फेरता हुआ जायशा की तरफ बढ़ा।
हेलो मैडम, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप मुझसे? अज़ीम शाह बेंच पे ज़ायशा से कुछ फासले पे बैठा उसकी तरफ देख के आईब्रो उचकाता हुआ अपना भारी आवाज़ में उससे मुखातिब हुआ था, जिस पे ज़ायशा ने चौंकते हुए अपने रजिस्टर से नज़रें उठाई थीं। अपने बेंच पे अज़ीम शाह को बैठे देख के उसकी हेज़ल आँखें फैली थीं। आप मैं भला आप कुछ क्यों कहना चाहूँगी? ज़ायशा उसकी बात पे बौखलाते हुए बोली, तो क्या आपको हर किसी को यूँ ताड़ने का शौक है जैसे आप अभी कुछ देर पहले मुझे ताड़ रही थी? अज़ीम शाह उसकी बौखलाहट पे अपनी मुस्कुराहट दबाता फिर से आईब्रो उचका के गोया हुआ था, जिस पे ज़ायशा ने मुंह खोलते हुए उस बेबाक इंसान को देखा। उससे इतनी साफ कोई की उम्मीद नहीं थी ज़ायशा को। वो उसकी बात का मतलब समझते हुए शर्मिंदा हुई थी। वो वाकई ही उसे काफ़ी देर से देख रही थी। यूँ जानलेवा अंदाज में देखेंगी तो कोई जान से हाथ धो बैठेगा। अज़ीम शाह उसकी खूबसूरत हेज़ल रंग आंखों को मज़ीद फैलता देख के अपने दिल पे हाथ रख के थोड़ा सा उसकी तरफ झुकता खमगीर आवाज़ में बोला था। ज़ायशा उसके यूँ अचानक नज़दीकी पे घबराती हुई उससे दूर हुई। देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आप मुझसे फ्लर्ट नहीं कर सकते। वो नज़रें झुकाते हुए घबराए हुए अंदाज में बोली थी, जिस पे अज़ीम शाह ने दांत कचकचाते हुए उसकी तरफ देखा था, जो उसके रोमांटिक जुमले की ऐसी की तैसी कर चुकी थी। मैं भी आपको यही समझा रहा था, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ ज़ायशा बीबी। इसलिए जिस अंदाज से आप मुझे भी कुछ देर पहले अपनी नज़रों के हसार में लिए हुए थी, आपको भी मुझसे यूँ नज़रों ही नज़रों में फ्लर्ट नहीं करना चाहिए था। अज़ीम शाह अपने धड़कते दिल पे काबू पाता संजीदगी से अपने शहद रंग बालों में हाथ फेरता हुआ हिसाब बेबाक कर चुका था, जिस पे ज़ायशा की हेज़ल रंग आंखें नम हुई थी। मैं आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं आंखों से फ्लर्ट कैसे करते हैं। मैं तो सिर्फ आप ज़ायशा मध्यम लहजे में बोलती अचानक से रोना शुरू हो चुकी थी, जिस पे अब बौखलाने की बारी अज़ीम शाह की थी। अरे अरे, रोना तो बंद करें मिस ज़ायशा, सब देख रहे हैं, प्लीज़ रोना बंद करें और मुझे पूरी बात बताएं। अज़ीम शाह अपने दोनों हाथ उठाता नरमी से बोला था, जिस पे ज़ायशा ने सूं सूं करते हुए अपनी हेज़ल आंखों को रगड़ के साफ किया था। अज़ीम शाह को उसका अपनी खूबसूरत आंखों से यूँ सख्ती बरतना एक आंख नहीं भाया था। मैं तो सिर्फ आपसे अपने शुरू के लेक्चर समझना चाह रही थी। उस दिन आपका फ्री में गाना सुनने के लिए सॉरी कहना चाह रही थी। आपको अपने कंसर्ट के लिए पे करना चाह रही थी। वो धीमे लहजे में हिचकी भरते हुए बोली, आप इतना कुछ चाह रही थी मिस आयशा, ये सब तो मुझे अब पता चल चुका है। लेकिन आप मज़ीद क्यों रोना चाह रही हैं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। प्लीज़ मुझे समझाएं। अज़ीम शाह दांत कचकचाते हुए नरमी से बोला था। उसने आज तक किसी लड़की से इतनी नरमी से बात नहीं की थी, लेकिन उसके मासूम अंदाज को देखते हुए मजबूर हो चुका था उससे इस अंदाज में बात करने को। नहीं नहीं, मैं तो नहीं रो रही। ये आप अपने पैसे ले लें ताकि मेरा आप पे सारा कर्ज उतर जाए। ज़ायशा नफ़ी में सर हिला के जल्दी से अपने बैग की जेब से 10,000 उसकी तरफ बढ़ा चुकी थी। मैंने सिर्फ आपका आधा गाना गौर से सुना था, इसीलिए ये 10,000 है। ज़ायशा मासूमियत से बोली थी, जिस पे अज़ीम शाह ने हैरानगी से एक नज़र उसके पैसों को देखा और एक नज़र उस लड़की की तरफ। वो क्या चीज़ थी? अज़ीम शाह सोच के रह गया। वो इतनी मासूमियत से उसे उसके आधे गाने को सुनने के पैसे वापस कर रही थी। अज़ीम शाह कुछ बोल नहीं सका। मैं सबको उनके पैसे वापस कर चुका हूँ, इसीलिए आप भी इनका अचार खरीद लें ज़ायशा बीबी। कुछ देर बाद अज़ीम शाह उसकी अकल पे मातम करता हुआ उसी के अंदाज में अटकते हुए दांत पीस के बोला था, लेकिन मैं इतना महंगा अचार लेके उसका क्या करूँगी? उसने जवाबन अज़ीम शाह की अकल पे मातम किया था, जो उससे इतने ज़्यादा पैसों का अचार खरीदने का मशवरा दे रहा था, जो उसने इतनी मेहनत से ऑनलाइन जॉब करते हुए कमाए थे। उसके जवाब पे अज़ीम शाह का दिमाग भग से उड़ा था। वो इतनी बेवकूफ़ दिखती तो नहीं थी जितनी वो बन रही थी, या वो फिर हकीकतन बेवकूफ़ थी। आप अचार को छोड़ें, ये मैं आपकी अक्लमंदी का सदका निकाल रहा हूँ, बाहिर फ़कीर को दे दीजिएगा। अज़ीम शाह उसके हाथ से 10,000 थाम के उसके सर से वार था, फिर उसके हाथ में पैसे थमा चुका था, जिस पे ज़ायशा ने फिर से अपनी हेज़ल आंखें फैलाते हुए उसकी तरफ देखा। ये सब अज़ीम शाह ने एक पल में किया था और वो उसे देख कर रह गई। मैं जानती हूँ मैं अक्लमंद हूँ, लेकिन मैं अपनी अकल का इतना ज़्यादा सदका कैसे किसी को दे सकती हूँ? फ़कीर मुझे मशकूक नज़रों से देखेंगे, कि आप अपने किसी जानने वाले फ़कीर को दे दीजिएगा। ऐसे में आपके कंसर्ट का कर्ज उतार दूंगी और आप मेरी अकल का सदका भी दे देंगे। वो मिनटों में चुटकी बजा के सारे मसले का हल निकालती 10,000 फिर से अज़ीम शाह के हाथ में थमा चुकी थी, लेकिन यूं कि उसका ब्लैक ग्लव्स में छुपा हाथ बिल्कुल भी अज़ीम के तोतिया सफ़ेद हाथ से टच नहीं हुआ था।
अज़ीम शाह ने उसे खाद जाने वाली नज़रों से घूरा था। तो वो क्या समझ रही थी, उसका उठना बैठना फ़कीरों में है, जिन्हें वो उसकी बेवकूफ़ी के सदक़े देता फिरेगा। लेकिन फिर उसने उसकी बात पे गौर करते हुए उसके हाथ से पैसे थाम लिए। वो वाकई सही बोल रही थी, इतने ज़्यादा पैसे देने पे फ़कीरों से मशकूक नज़रों से देखते। और अज़ीम शाह को कहाँ गवारा था कि कोई उसे एक आंख उठा के भी देखे। अज़ीम शाह ने पोसेसिव अंदाज में सोचा था और फिर अपनी शिद्दत पसंदी पे खुद ही हैरान हुआ था। अब प्लीज़ मुझे मेरे मिस्ड लेक्चर समझा दें, कुछ दिनों बाद इन सब का टेस्ट है। साइशा उसके पैसे पकड़ने में मुतमईन होती अपना रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ा रही थी। जायशा को उसकी आंखों में हया नजर आई थी, चाहे अज़ीम की आधी बातें उसके सर के ऊपर से गुजरी थी, लेकिन वो इतना बदतमीज़ नहीं था जितना उसने उसे शुरू के दिनों में समझा था। मतलब थोड़ा ही बदतमीज़ था अपनी बेबाकी की वजह से। इसकी मैं अलहदा से फीस लूँगा, अज़ीम शाह ने संजीदगी से बोलते हुए उसके हाथ से रजिस्टर थामा था, जिस पे जायशा ने चौंक के उसकी तरफ देखा, अपनी हेज़ल आंखों में मासूमियत लिए। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, क्या समझना है। अज़ीम शाह उसकी आंखों में मासूमियत और बेक वक्त उदासी देखते हुए होले से हंसता गोया हुआ था, जिस पे जायशा ने मुतमईन होते हुए उसे पहले चैप्टर निकाल के दिए। अज़ीम शाह संजीदगी से कितनी ही देर जायशा को बेहद आसान तरीके से समझाता रहा। वो जैसे जैसे जायशा को समझा रहा था, जायशा को लग रहा था उसका समझाया एक एक पॉइंट उसके दिमाग हिफ्स करता जा रहा है। अज़ीम का समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा था, उसे आज तक ऐसा लेक्चर लेने का किसी टीचर से भी मज़ा नहीं आया था। अज़ीम शाह अपना निचला गुलाबी लब दांतों में दबाए आखिरी सवाल देखता रजिस्टर पे अपनी खूबसूरत राइटिंग में हल कर रहा था। जायशा की नज़रें उसके खूबसूरत सुर्खों सफ़ेद चेहरे से होती हुई उसकी मर्दाना चौड़ी कलाई पे बंदी ब्रांडेड घड़ी पे पड़ी थी, जो उसकी कलाई पे काफ़ी जच रही थी। और फिर अज़ीम के खुद को देखने से पहले ही वो अपनी बेख्तियार होती नज़रें उस पर से हटाती रजिस्टर की तरफ मतवज्जे हो गई। दूर ग्राउंड में बैठे अज़ीम शाह के दोस्त हैरानगी से कभी अज़ीम और कभी जायशा को देख रहे थे। उन्हें दाल में कुछ काला लग रहा था या फिर पूरी दाल ही काली लग रही थी। अम्मा मुझे बचा लें, देखो मेरे करीब मत आओ। गुलाली किचन की स्लेब के साथ कमर टिकाती मासूमियत से छुरी उठाती हुई चीखी थी। वो जो आज तक हवेली के इतने बड़े जिन आहान शाह से नहीं डरी थी, आज एजल शाह की मासूम सी किट्टी को अपनी तरफ बढ़ता देख के उसके तोते उड़े। मियाऊं। किटी हनूस मासूमियत भरी आवाज़ें निकालती उसकी तरफ बढ़ी थी। अम्मा। किटी को अपने नज़दीक आते देख के गुलाली आंसू बहाती हुई अपनी जगह से उछली थी। उसने चीखते हुए सरताज अम्मा को आवाज़ दी थी, जो न जाने कहाँ थी। उस वक्त किचन में कोई दूसरी मुलाजमा भी नहीं थी जो इस बिल्ली को उससे दूर कर सकती। पश्तो, देखो मेरे करीब मत आना, मैं मर जाऊंगी। गुलाली को लगा शायद बिल्ली को उर्दू समझ नहीं आ रही, इसलिए उसने अब की बार पश्तो में एक और कोशिश की, लेकिन बिल्ली हनूस मियाऊं मियाऊं करती उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। बिल्ली ने तो उसकी पुकार नहीं सुनी, लेकिन शाह बीबी के पास कुछ देर बैठने के बाद सीढ़ियों की तरफ जाता आहान शाह गुलाली की आवाज़ में इतनी खूबसूरत अंदाज में पश्तो सुनता अपनी जगह पे स्टिल हुआ था। उसे उसकी पश्तो की बिल्कुल समझ नहीं आई थी, लेकिन उसका पख्तून ज़ुबान बोलने का अंदाज़ इतना मासूम था कि आहान शाह के दिल ने बेसाख्ता उसके गुलाबी होंठों की हरकत देखने की ख्वाहिश कर डाली। आहान शाह ने अपना रुख मोड़ते हुए लाउंज पे एक नज़र डाली थी। शाह बीबी वहाँ नहीं थी, वो शायद नमाज अदा करने गई थी। आहान शाह के कदम खुद ब खुद किचन की तरफ बढ़े थे। उसकी भराई आवाज़ और वक्फे वक्फे से चीख मारने से लग रहा था जैसे वो किसी मुश्किल में हो। गो यहाँ से। गुलाली इस वक्त इंग्लिश और उर्दू को मिक्स करती हुई उस बिल्ली को अपने करीब आने से रोक रही थी, जो उससे सिर्फ चंद कदम दूर थी। उसने काफ़ी दफ़ा आहान शाह के मुंह से अंग्रेज़ी के ये 3 अल्फाज गो फ्रॉम हेयर मुलाजमों को अपने पास से भगाने के लिए सुने थे, जिसमें से अभी सिर्फ गो ही याद था। इसीलिए उसने मज़ीद एक ज़ुबान का अपने तरीके से इस्तेमाल करते हुए किटी को अपने करीब आने से रोका। आहान शाह जो किचन में दाखिल हो चुका था, उसे छुरी पकड़ के ज़मीन की तरफ देख के मासूमियत से आंसू बहा के अंग्रेज़ी का बेड़ा गर्क करते देख के आहान शाह ने बमुश्किल अपना कहका रोका। वो छोटी सी क्यूट सी सफ़ेद किटी से डर रही थी। ये बात आहान शाह के मानने में नहीं आ रही थी। उसके गुलाबी होंठों से ये अंग्रेज़ी का टूटा फूटा लफ्ज़ इतना क्यूट लगा था कि आहान शाह बेख्तियार होता हुआ अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा चुका था। उसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों से आंसू फिसलते हुए उसके आरज़ों पे गिर रहे थे। आ पश्तो, अम्मा मुझे बचा ले।
अब बिल्ली मज़े से गुलाली के धोतिया सफ़ेद पैर चाटती उसे फूट फूट के रोने पे मजबूर कर रही थी। गुलाली अपनी छुरी थामे हाथों को मुंह पे रखती बच्चों की तरह रो रही थी। वो नरम दिल लड़की उस बिल्ली को अपने पैर से झटक भी नहीं रही थी कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, लेकिन बिल्ली की खुरदरी जुबान अपने पैर पे महसूस करते हुए गुलाली को लगा उसकी टांगों से जान निकल जाएगी। आंखें बंद होने की वजह से वो अपने बेहद करीब खड़े आहान को देख नहीं पाई थी। हालांकि वो आज डर की वजह से आहान के तेज क्लोन की खुशबू भी पहचान नहीं पाई थी। आहान ने स्लेब पे उसके इर्द गिर्द हाथ जमाते हुए उसके खूबसूरत चेहरे पे फूंक मारी। अपने चेहरे पे किसी की गर्म सांसों की तपिश महसूस करते हुए गुलाली ने डरते हुए अपनी आंखें खोली थीं। अपने सामने आहान को देखते हुए वो बेसाख्ता उसके साथ लिपटती हुई ज़ारों की तार रोना शुरू हो चुकी थी। आहान उस नर्म मुलायम वजूद को खुद के साथ यूं लिपटते देख के साकित हुआ। शाहजहां, मुझे इस बिल्ली से बचा लें, आपको खुदा का वास्ता, ये मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से काट रही है। मुझे लग रहा है मेरा पैर ज़ाया कर चुकी है, अब मैं चल नहीं पाऊंगी, और अगर मैं चल नहीं पाऊंगी तो मैं काम कैसे करूंगी, और अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मुझे शाह बीबी से कौन बचाएगा, और अगर अभी वो उखड़ी हुई सांसों के दरमियान मासूमियत और खौफ से रोती हुई अपने पैर की तरफ इशारा करके मजीद बोलती, जब आहान शाह ने अपने पैर की मदद से उस बिल्ली को गुलाली से दूर करते हुए उसके हिलते गुलाबी लबों को देख के खुद पर से आज एक बार फिर खुद पर से इख्तियार खोया था। वो झुकते हुए अपने लबों से उसकी बोलती बंद कर चुका था। किचन में उसकी इस हरकत पे गुलाली की क्रिस्टल ग्रे आंखें खतरनाक हद तक फैली थीं। गुलाली रोना भूल चुकी थी। आहान शाह के इस कदर शिद्दत भरे लम्स पे गुलाली ने उसकी नीली कमीज सीने से अपने हाथों की मुट्ठियों में जकड़ी। वो जालिम बनता हुआ उसके गुलाबी लबों पे बारहा दांत काटता उसके हाथ से छुरी थामते हुए स्लेब पे पटक चुका था। गुलाली ने आज भी उसे खुद से दूर नहीं झटका था। उसे खुद पे गुस्सा आया था जो वो उस बिल्ली से बचाव के लिए आहान शाह के सीने से लगी थी। वो कैसे इस बेमोहर इंसान के सीने से लग सकती थी जो अपनी मनकूहा के होते हुए भी किसी और से शादी और मंगनी करने की खामी भर चुका था। वो कैसे उसे मदद के लिए पुकार सकती थी जिसने उस दिन उसे चोरी के डर से अपने कमरे से निकाला था। आहान शाह प्यासा बना बेरहमी से उसकी सांसें पी रहा था। बिल्ली अब आहान शाह के पैर से किक खाने के बाद अपने तलवे चाटती हुई उस रोमांटिक फिल्म को मज़े से देख रही थी। आहान शाह को अचानक से ख्याल आया था वो किचन में है और किचन में किसी भी वक्त कोई भी आ सकता था। आहान शाह ने अपनी हरकत पे दिल में खुद को 200 सलवातों से नवाजते हुए उसके निचले गुलाबी लब को अपने दांतों में दबाते हुए आज़ादी बख्शी थी। अपने लबों पर उसकी इतनी बेरहमी देखते हुए गुलाली ने सिसकते हुए अपने नाजुक लबों पर हाथ रखा। वो अब अपनी फूली हुई सांसों को हमवार करने के लिए उसके सीने से नहीं लगी थी। ये मेरे सीने से लग के मुझसे मदद मांगने की सज़ा थी। आइंदा मुझसे दूर रहना लड़कियों। लड़कियों के ये बिल्ली से डरने वाले ड्रामे सिर्फ ड्रामों में ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए आइंदा अपनी इन भयानक चीखों की मदद से ऐसी एक्टिंग करने से गुरेज करना, वरना इसी छुरी की मदद से तुम्हारे होंठ काट दूंगा जिनसे चीखें मारते हुए तुमने पूरी हवेली सर पे उठाई हुई थी। आहान शाह उसके ज़ख्मी लबों पे नजरें जमाता अपनी कुछ देर पहले वाली बेख्तियारी को अपने गुस्से और बेहिस अल्फाजों के जरिए छुपा रहा था। उसके होंठों के पास छुरी की गुस्से से गराया था जिसपे गुलाली ने टहलते हुए अपनी आंखें जोर से मीठी थी। वो जो अपनी सांसों को हमवार करने की तगदों में हलकान हो रही थी। आहान शाह के बेहिस रूप पे वो अपना सांस तक रोक गई। वो पूरी तरह से डर चुकी थी। उसे डर से कांपते देख के आहान शाह ने स्लेब पे छुरी पटकते हुए अपने भूरे बालों में हाथ फेरा। वो हनूज आंखें मीचे हुए थी। आहान शाह की नज़रों का मरकज़ उसका दोदिया हाथ बना था जो कुछ देर पहले जलने की वजह से सुर्ख हो चुका था। उसी दाएं हाथ से काम करने की वजह से उसके हाथ पे छाले बन चुकी थी। मियाऊं। किटी ने उस रोमांटिक फिल्म को बंद होते देख के मासूमियत से अपनी पीठ उठाते हुए अंगड़ाई ली थी। किटी की आवाज़ पे गुलाली ने आहान शाह के बेहिस अल्फाजों पे सब्र के घूंट पीते हुए अपनी आंखें खोली। वो उसकी तरफ देखे बगैर अपना रुख मोड़ के सब्जियां काटने में मसरूफ हो चुकी थी। ये सुबह से दूसरी बार था जो उसने आहान शाह की तरफ देखने से गुरेज बरता था और उसकी यही हरकत आहान शाह को नागवार गुजरी थी। उसने उसके होंठों को पूरी तरह से जख्मी कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने उसे शिकवा कुना नज़रों से नहीं देखा जैसे वो हमेशा से देखती थी। क्या वो उससे कोई नाराज़गी जिता रही थी? वो नज़रें फेर के आहान शाह ने लब काटते हुए सोचा, जिताती है तो जिताती ने, मैं कभी से मोहब्बत के दम भरा हूँ। आहान शाह बेहिसी से सोता हुआ अपना सर झटकते हुए किचन से बाहर निकला था। गुलाली ने अपना रुख मोड़ के नम आंखों से उसकी तरफ देखा।